It's really a it's really a wonderful privilege to come and share God's word with you all. और ये बहुत सौभाग्य वाली बात है आप सभी के बीच में जो आज का जो मैसेज है मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। Thank you also for our dear brother who is translating for us. May God bless his words so that God's name might be glorified. थैंक यू अंकल जी। और उस भाई का भी आज बहुत बहुत धन्यवाद हो जो हम सबके बीच में ट्रांसलेट करने जा रहा है और प्रभु भी उसको आशीष करे। So, our study, we are going to open a new topic, finding miracles in everyday life. और आज हमारा विषय है कि हम अपना जो हमारे रोज के जीवन में चमत्कार को लेकर We are going to study the life of Peter. Out of the life of Peter, we are going to see how he was living daily on a miracle basis. और आज हम पतरस की जिंदगी के बारे में जानेंगे कि वो जो चमत्कार के जरिए कैसे रह रहा था। So we will be studying 13 lessons for every week. और हम हर हफ्ते 13 लेसन्स को पाठ को पढ़ेंगे। So today we will be going into the introduction and the first lesson. और अभी हम उसके जो इंट्रोडक्शन पे जाएंगे पहले पाठ के। We can see how Peter's life had become a miracle because he gave his life to God. और आज हम देखेंगे पतरस का जीवन, जो पतरस ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए और दे दिया है, उसके जीवन में कैसा अद्भुत चमत्कार होता है। So the greatest miracle performed by God is the salvation of the lost sinner. और उसके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो चमत्कार था, प्रभु ने उसको जो खो गया था उसको उद्धार पाया। So this miracle of salvation has cost a great price because our Lord Jesus Christ had to die for us on the cross. और ये उद्धार का चमत्कार है वो प्रभु जो परम पिता ने हमारे लिए दिया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को कलवरी पे मरने के लिए दे दिया। Here also Jesus Christ, when he was on this earth, he had done other miracles also. और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था तब उसने बहुत सारे चमत्कार भी किए। But this miracle of salvation has produced the greatest results. और उस सभी चमत्कारों में सबसे बड़ा चमत्कार उद्धार का चमत्कार है जो उसने हम सभी के लिए किया है। Jesus Christ had healed the sick people. He raised them from the dead. Afterwards, they were sick and they died also. और प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए लोगों को जिंदा किया और बाद में वो जिंदा लोग वो मर गए। He also fed the hungry people. Afterwards, they were again hungry. और प्रभु यीशु मसीह ने उन भूखे लोगों को भी खाना खिलाया, लेकिन वो बाद में फिर भूखे हो गए। But when Jesus forgives a sinner who wants to repent from his sins, he gives the sinner something which lasts for eternity. और जो लोग पाप में थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी को पाप से क्षमा किया, और लेकिन जो पाप से क्षमा होने के बावजूद जो पाप में पड़ गए, प्रभु यीशु मसीह ने उनको जो आखिरी अंतिम जीवन है उसको नहीं देख पाए वो लोग। So when a sinner turns to faith to Jesus Christ, he becomes the child of God and he experiences a miracle in his life.
और जब कोई पापी व्यक्ति उद्धार पाता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, तो वो उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं। So the first great miracle for me is the salvation. और सबसे अद्भुत चमत्कार जो मेरे लिए है वो है उद्धार। The second greatest miracle is transforming his children into the persons he wants them to be. और दूसरा चमत्कार ये है कि उन बच्चों को बदलना जो उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। So, brothers and sisters, the new birth on Jesus Christ is not the end, it is only the beginning of our new life on him. और प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन एक शुरुआत है हम सभी को आगे बढ़ने के लिए। Yes, brothers and sisters, when we grow little by little to be closer to the Lord, we are able to do the things which we are never dreamt of. और मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु के नजदीक और आते जाते हैं तो हम अपने जीवन में वो कार्य करते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। So when we get more and more closer to the Lord, we are able to experience His love. We are able to experience His forgiveness. We are able to experience His help. और जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभु परमेश्वर के और नजदीक आते हैं, तब हम परमेश्वर का प्यार देखते हैं, हम परमेश्वर की क्षमा देखते हैं और हम परमेश्वर का अद्भुत कार्य को देखते हैं। When we think about this apostle Peter, we try to criticize Peter because he had many faults like us. और जब हम पतरस के जीवन को देखते हैं तो हम पतरस के जीवन को बहुत ही ज्यादा नकारात्मक की तरह देखते हैं, क्योंकि पतरस के जीवन में बहुत सारी गलतियां थी। But Peter was a great man, and Lord Jesus Christ made his life a miracle. और लेकिन पतरस का बहुत अच्छा इंसान था और परमेश्वर ने उसको जीवन को चमत्कारों से भर दिया था। So this Jesus loved so much Peter that he transformed him who he was. Peter, he was just a fisherman. He transformed him into an extraordinary servant of God. और हम और हम पतरस को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उससे प्रेम किया तो पतरस एक साधारण मछुआरा था, लेकिन उसके बाद वो एक बहुत अद्भुत व्यक्ति बन गया। So often we talk about the first miracle in the Bible as turning the water into wine. I will tell you the greatest miracle here is turning Simon into Peter, that is, turning him into a rock. और हम यहाँ पे बाइबल के जरिए देखते हैं कि परमेश्वर ने पहला चमत्कार किया था जिसने पानी को I would like to read a passage in the book of John chapter और 1, 40 to 42nd verse. और हम यहाँ पे जब इसके बारे में देखते हैं तो अपनी बाइबल से यूहन्ना उसका 1 अध्याय 42 और 43 में हम पढ़ते हैं। John 1, 40 to 42. Can somebody read these verses, please? और हम यूहन्ना 1 अध्याय उसका 41वां और 42वां अध्याय वचन देखते हैं, और कोई भाई बहन पढ़ सकता है। उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर उससे कहा कि हमको खिस्तूस अर्थात मसीह मिल गया। वह उससे यीशु वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र समौन है, और तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। Thank you, brother. So, to appreciate what Jesus did for Simon and Peter, and then when we learn that, we can also know what he can do for each and one of us. और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने
जो पतरस के लिए जो किया है, यदि हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमारे लिए वो कितना कुछ कर सकता है। So for that we have to see how he was Simon Peter before he met Jesus Christ. We have to learn about his life background before he met Jesus Christ. और अब आज के जो विषय में हम देखेंगे कि पतरस जो परमेश्वर से मिलने से पहले उसका लाइफ, उसका जिंदगी कैसा था, उसके बारे में हम जानेंगे। So Peter was born in Bethsaida, which is called house of fishing. और जो पतरस है, पतरस का जन्म बैतसैदा में हुआ था, जिसको जो मछली और मछुआरे का जगह कहते थे। He was named after Jacob and Leah's second son Simeon, which is in Greek Simon. और जो जेकब और सियाक का दूसरा बेटा था, जिसको ग्रीक में साइमन कहते हैं। He was married and he lived in Capernaum, where he had his own fishing business with his brother Andrew and also his partners James and John. और वो एक दूसरी जगह में रहता था, जो उसके अपने भाई के साथ मछली पकड़ने का कार्य करता था, जो यूहन्ना के साथ वो रहता था। So we have to also know that Peter was living along with his mother-in-law, his wife, and also his brother Andrew. They were all living together. और पतरस अपनी पत्नी के साथ और अपने भाइयों के साथ, वो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। So we all know also that Simon was a Jew. So as a Jewish man, he told that the Jewish law was just like wearing a yoke, wearing something hard for him in his life. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिमोन है, सिमोन एक यहूदा था, जो यहूदा का जो कानून है, जो अपने पास एक भारी भरकम चीज रखते हैं, वो यहाँ पे वो रखता था। And we all know that his occupation was he was a fisherman. That is, he was used to hard work, and when there is tough time, he will never give up. He will continue to work. और हम जानते हैं कि जो सिमोन है वो एक मछुआरा था, और जो अपने काम के प्रति बहुत मेहनत करता था, और वो बहुत मेहनत से मछली पकड़ता था। We all should remind that Lord Jesus Christ, when he chose his disciples, nearly 7 of his disciples were fishermen. और हम यहाँ पे याद याद करते हैं कि जो पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, जब उन्होंने 7 चेलों को चुना, उसमें से जो 7 थे वो मछुआरे थे। Why Jesus Christ chose these fishermen to be his disciples? Because these men knew how to work, they knew how to work together, and also they knew how to get the job done. और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के रूप में मछुआरे को ही क्यों चुना, क्योंकि जो मछुआरे हैं वो अपने काम को जो मेहनत से करते थे, और वो अपने काम को पूरा करते थे। But you have to keep in mind that these fishermen, they were not doing fishing just for a pastime. It was their livelihood. That is, if they don't catch fish, they will not be able to pay their bills. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मछुआरे हैं वो अपने काम को आधा नहीं करते थे, वो अपने काम को पार्ट टाइम की जगह नहीं करते थे, वो उनका पूरा जीवन जो मछुआरे को तभी उनका वो खाना और उनका जो बिल है, जो उनका कर्जा है, वो उनको छूटता था, ताकि वो मछली पकड़ के लाए और उनका वो कर्जा कम हो। So we have to remember that we as Christians, when you read the life of Peter, it is really a great encouragement to us. That is Peter's life and his ministry. और हम जो मसीह लोग हैं, हम जो पतरस के जीवन को बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो हमको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि पतरस का जीवन बहुत जाना अपने आप में अद्भुत है। Often we read by the commentators that
If John is the apostle of love and Paul is the apostle of faith, Peter is the apostle of hope. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यूहन्ना है वो प्यार का प्रतीक है, और जो पौलुस है वो विश्वास का प्रतीक है, और हम देखते हैं पीतर जो पतरस है वो आशा का प्रतीक है। So this Peter, who is a very great living hope for each and every one of us, we are going to study his life so that we can also have the same hope, wonderful hope, living hope in our life. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस है जो एक आशा का प्रतीक है हमारे जीवन में। जो आशा है वो पतरस के जीवन की तरह एक होनी चाहिए, और पतरस का जो आशा है हम सब के साथ, वो हमको एक ना एक दिन वो हासिल करने की वो आशा हमके पास होनी चाहिए। So when Peter met Jesus Christ, everything changed in his life. He started living in a future sense, future tense. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब पतरस प्रभु यीशु मसीह से मिला, उस पल से उसका जीवन पूरा बदल गया, और वो अपने जीवन को एक आगे की तरह सोचने लगा। So when he had everything changed in his life became a miracle. और जब पतरस का जीवन पूरी तरीके से बदल गया, तब उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ। So now we are going to see three major new things in the life of Peter that will help us to have this wonderful living hope. और हम यहाँ पे पतरस के जीवन से तीन मुख्य और बड़ी बातें देखेंगे, जिससे हम अपने जीवन में भी आशा का भाग दे सकें। So the first new thing that Peter had was he had a new beginning. और पहली चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं पतरस के जीवन से, वो है एक नई शुरुआत। So when John the Baptist, when he suddenly appeared by the Jordan River, he announced the kingdom of God to everybody who were there. और जब पतरस ने बपतिस्मा लिया, तब उसने कहा कि इसका ये पूरा राज इसके लिए है, और सभी को वहां पे बताया। So this John the Baptist, by his message, he shook everybody. He used to do something that brought fear in the life of everybody. और जब यूहन्ना ने उसको जो बपतिस्मा दिया, तब यूहन्ना ने जो शब्द कहा, सारे लोग अचंभे हो गए और सोचने लगे ये ऐसा इसके लिए बोल रहा है। We have to know that between the Old Testament and the New Testament, God was not talking with the people. That is, there were nearly 4 centuries of silent period. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पुराने नियम में और नए नियम में परमेश्वर लोगों से बात नहीं करता था, जो उसका 4 शताब्दी है उससे पहले। So after this silent period, that is where John the Baptist came with a very strong message telling about our Messiah who will be coming. और हम यहाँ पे जो देखते हैं जो 4 शताब्दी के बाद जब पतरस ने बपतिस्मा लिया, तब एक बहुत अद्भुत और मजबूत जो संदेश पहुंचाया कि हमारा जो नया मसीहा है जो पैदा हो गया। So this prophecy, which was talked by the prophet Malachi, was fulfilling here in the New Testament. You can read in the last chapter of Malachi, there this prophet Malachi, he was talking about a prophecy. और हम यहाँ पे जो मलाकी भविष्यवक्ता को देखते हैं, जब उसने जो भविष्यवाणी की थी पतरस के बारे में, उसको हम नए नियम में देखते हैं कि वो पूरी हो रही है। आप इस चीज को मलाकी की पुस्तक में पढ़ सकते हो। There, I have no time to read that verse, but Malachi
4th chapter, 5th and 6th verse. If you have time, you can read it at home. There, Malachi is talking about the prophet Elijah who will be coming soon in the last days. और हम यहाँ पे जो मलाकी उसका 4 अध्याय उसके 6 वचन में देख सकते हैं कि जो भविष्यवक्ता एलिय्याह है वो आ रहा है। So many people, when they saw John the Baptist, they thought that this was Elijah. They thought that this was the prophet who had came. He asked the prophecy and it was fulfilling the prophecy. और जब पतरस जो बपतिस्मा लेने गया था तब सभी लोग अचंभा होके सोचने लगे और कहने लगे क्या ये वही जो भविष्यवक्ता एलिय्याह है जो हमारे लिए आ रहा था, जो भविष्यवक्ता मलाकी ने हम सबके लिए क्या था, क्या कि ये पूरा हो रहा है। But we all know that John the Baptist, he was not Elijah, but he came in the spirit and the power of Elijah, and he was courageous and he was a prayerful man just like Elijah. और जब हम सभी लोग जानते हैं कि जब यूहन्ना ने उसको बपतिस्मा दिया तो वो पतरस था, एलिजा नहीं था। लेकिन जो एलिजा का जो पूरा जो विश्वास है, जो आत्मा था, वो पतरस में दिख रहा था, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन था। So when this John the Baptist arrived in Capernaum, who where Simon Peter they were staying. It was in the same place that John the Baptist came and arrived to announce the gospel. और यूहन्ना का वो वही स्थान था जहाँ यूहन्ना आता था और परमेश्वर का वचन सुनाता था और उसी जगह पे ये सिमोन पतरस वहां पे मौजूद था। So when they heard about this news, Simon Peter and his partners, they traveled to go and hear this preacher, John the Baptist, who was telling courageously. He was telling what? He was telling generation of vipers. He was telling the Pharisees and Sadducees. He was accusing them as the generation of vipers. और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना जो सभी को संदेश सुनाता था, वहां पे संदेश सुनने के लिए जो पतरस और उसके जो साथी थे वहां पे आए और वो लोग जो यूहन्ना संदेश में जो जनरेशंस लोगों के जनरेशंस की बात कर रहा था। So this John the Baptist was telling every sinner, everybody to repent of their sins and be baptized. और यूहन्ना वहां पे सभी लोगों के पाप के बारे में बात कर रहा था कि सभी लोग अपने पाप को माने और बपतिस्मा ले। It seems also that Peter, Andrew, James, and John were baptized by John the Baptist and they became his disciples. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एंद्रियास था और यूहन्ना था, वो यूहन्ना के जरिए उन्होंने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर का और यीशु मसीह के चेले बन गए। But the work of John the Baptist, the mission of John the Baptist was not to gather disciples around himself. He came just to introduce people to Jesus Christ. और हम देखते हैं कि यूहन्ना का काम सभी लोगों को बपतिस्मा देना नहीं और सभी लोगों को चेला बनाना नहीं था, बल्कि उसका जो मेन कारण था कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सभी को बताए। That is why often John the Baptist told that, look, the lamb of God who taketh away the sins of the world. और हम यहाँ पे देखते हैं यूहन्ना बोलता है कि देखो उस परमेश्वर के मेमने को जो वहाँ पे सभी का बोझ, पाप का बोझ उठाए लिए जा रहा है। But this Simon Peter and his friends, they knew about the Passover lamb. They knew about the sacrifices. But this John was introducing themselves to something new. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस को मालूम था कि जो कलवरी है वो परमेश्वर हमारे लिए बोझ उठा रहे हैं और उसको मालूम था कि परमेश्वर हमको यहाँ पे लाए हैं। लेकिन जो नई बात उसने यूहन्ना के जरिए सुनी। So this John was pointing to the lamb who was sent by God, not chosen by a priest. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना
यूहन्ना परमेश्वर के मेमने के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर ने उसको भेजा है, ना कि कोई पादरी ने। This John was pointing out to the Lamb whose blood could take away all our sins, not only cover it. और यूहन्ना यहाँ पे बता रहा है कि जो परमेश्वर का मेमना है वो हम सभी के लिए लहू बहाएगा, हमको ढकेगा नहीं। This lamb was given for the whole world, not just for families in the Jewish nation. और हम यहाँ पे देखते हैं यूहन्ना ने बताया कि ये जो मेमना है वो सभी जगत में सभी के पापों के लिए अपना बलिदान देगा, ना कि अपने परिवार के लिए, ना कि यहूदियों के लिए। So when Andrew and John were standing with John the Baptist, Jesus passed by. What did he tell John the Baptist? He said, "Look, the Lamb of God." और जब यूहन्ना और अंद्रयास यूहन्ना के बगल में खड़े थे बपतिस्मा के लिए, तब वहां से प्रभु यीशु मसीह गुजरे और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए कहा, देखो ये है परमेश्वर का मेमना। So from that time, Andrew and John, they took the decision. They took this decision to follow the Lord Jesus Christ, and they followed him the rest of their life. और वहां पे एंड्रियास और जो यूहन्ना ने निश्चित कर लिया था कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपना पूरा जिंदगी को के साथ उनके साथ हम तो जिंदगी भर रहेंगे। So this is our first point, new beginning. They started to follow Jesus Christ. That was the new beginning in their life. और ये हमारा पहला जो मुख्य कारण था कि नई शुरुआत, तो नई शुरुआत से जो अर्थ है उसका, वो यीशु मसीह के पीछे चलना। Then the second new thing here is Peter was given a new name. और हम यहाँ पे जो दूसरा कारण देखते हैं वो है कि पतरस को एक नया नाम मिला। We read that here in the 42nd verse, we read that thou art Simon, but thou shalt be called Cephas. और हम यहाँ पे 47 में देख सकते हैं यूहन्ना उसका एक अध्याय उसका 47वें वचन में। 42nd verse, not 47, 42nd verse. 42nd. 42 में 42 में हम देख Yeah. सकते हैं यूहन्ना उसका एक अध्याय उसका John 42। first chapter, 42nd verse. वह उसे यीशु के पास लाया, यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र समौन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। Thank you. So when Andrew and John, they met Jesus, what did he do immediately? This Andrew, that's interesting to see. और जब यूहन्ना और एंड्रियास प्रभु यीशु मसीह से मिले, तब एंड्रियास ने वहां पे क्या किया, ये बहुत देखने की बात है। We read that in the 41st verse, we read that this brother Andrew, he brought Simon to Jesus. Wonderful. और हम यहाँ पे देखते हैं कि 41वें वचन में कि जो एंड्रियास था वो अपने दोस्त समौन को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया। Yes, brothers and sisters, people come to Christ in different ways, but the important thing is that they come to him. That is important. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन ये जरूरी बात है कि वो यीशु मसीह के पास आए। Andrew and John heard the preaching of John the Baptist, और and जो Simon was brought to Christ by the personal witness of his own brother. और हम यहाँ पे देखते हैं कि एंड्रियास और जॉन जो यूहन्ना का जो शब्द को सुनकर आए थे, और लेकिन एंड्रियास अपने भाई जो समौन को उसको लेकर आया। Yes, that is Andrew. He brought his brother Simon Peter by his own personal witness to Jesus Christ. Wonderful testimony. और हम यहाँ पे देखते हैं कि
जो एंद्रियास था वो अपने भाई समौन पतरस को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास लाया। ये बहुत अद्भुत वाली बात है। You can study the life of Andrew. Every time we read about Andrew in the Gospel of John, he is bringing someone to Jesus Christ. और जब भी हम कभी एंड्रियास के बारे में पढ़ते हैं तो एंड्रियास के बारे में हमेशा हम यूहन्ना के जरिए पढ़ते हैं कि एंड्रियास वो किसी ना किसी को यीशु मसीह के पास लाया। This Andrew, first of all, he brought his brother Simon to Jesus Christ. और पहली बात जो एंड्रियास की है वो अपने भाई समौन पतरस को परमेश्वर के पास लाया। And secondly, the little boy with the lunch, he brought that little boy also to Jesus Christ. और दूसरी बात देखते हैं कि जो एंड्रियास था वो एक छोटे बच्चे को वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया। And finally, the Gentiles, all the Gentiles wanted to see Jesus Christ. और जो सभी अन्य जाति के लोग थे वो सभी यीशु मसीह को देखना चाहते थे, वो फिर उन्होंने यीशु मसीह को देखा। So in the Bible, we don't read great preaching which was given by Andrew, but we see the example of his personal testimony which has motivated Christians for centuries, so that he had a wonderful testimony to bring people to Christ. और हम यहाँ पे देखते हैं कि एंड्रियास अपने जो वचन को और जो लोगों के बीच में जो गोस्पल्स को वचन को नहीं बांटता नहीं देखा, बल्कि हमने देखा है कि एंड्रियास वो किसी न किसी को प्रभु यीशु मसीह के पास लाता था और सभी को एनकर प्रोत्साहित करता था। So John the Baptist's theology can be summarized in two statements. और जो यूहन्ना का जो बात है उसको हम दो बातों में देख सकते हैं। The first statement is, look to the Lamb of God. पहली बात है कि उस परमेश्वर के मेमने को देखो। The second one is, he must become greater, I must become less. और दूसरी बात यह है कि वह बढ़े और मैं घटूं। So when Andrew introduced Simon to Jesus, Jesus looked at him. We read that in the 42nd verse, John 1:42. और जब एंड्रियास अपने भाई समौन पतरस को यीशु मसीह के पास लाया, तब यीशु मसीह ने उसको देखा। वो हम यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 42 में देख सकते हैं। That is what that is mean. Jesus looked at him. इसका क्या मतलब है कि यीशु मसीह ने उसको देखा? Jesus fixed his eyes on Simon and looked him just not like a fisherman, but he looked into his heart and also looked into the future, how he is going to become a great disciple. और प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक मछुआरे के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसको देखा कि उसका भविष्य और वो कितना अच्छा चेला बन सकता है। Jesus was not trying to discover whether Simon Peter was worthy to be a disciple. We are not all worthy to be a child of God. प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को ऐसे नहीं देखा कि ये इसके लायक है, बल्कि हम लोग भी ऐसे नहीं हैं कि हम उसके लायक हो, लेकिन यीशु मसीह उसको एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छा चेले के रूप में देख रहे हैं। We all know that nobody is worthy. Our relationship is earned only by grace. We cannot earn our salvation. We never deserve it. और हम लोग में से कोई भी उसके लायक नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने लायक बनाया। हमको इसका कोई वो नहीं है कि हम उसके नजदीक भी जा सके। But when Jesus Christ looked at him, he understood immediately Simon's strength and also Simon's weaknesses.
और जब प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन को देखा तब उसने उसका जो मजबूत पक्ष है उसको भी देखा और उसका कमजोर पक्ष है उसको भी देखा। Yes, brothers and sisters, God knows, Jesus Christ knows all our strength. He knows all our weaknesses. और हाँ भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे सभी कमजोर जो पक्ष है उसको जानते हैं और मजबूत पक्ष है उसको भी जानते हैं। He also knows our gifts and also our wonderful talent of leadership. और प्रभु यीशु मसीह हम सभी के खूबियों को भी जानते हैं और पर प्रभु यीशु मसीह हमारे जो अंदर छुपी जो बातें हैं उसको भी जानते हैं। Jesus knew what Simon could do for the work and what the work could do for Simon. और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो समौन के लिए काम करना और कैसा काम है समौन कर सकता है और काम कैसा है वो समौन कर पाएगा। So, after looking at Simon, Jesus told Simon, you will be called Cephas. That is, the meaning of that word in Aramaic is rock. और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन को देखा और उसने उसको नाम दिया कि तुम पतरस कहलाओगे, जो एक चट्टान का प्रतीक है। And the meaning of that in Greek form is Peter. और इस शब्द का जो ग्रीक भाषा में मतलब है वो है पतरस। So now this disciple, he has four names: Simeon, Simon, Cephas, and Peter. और जो सिमोन है उसका इसमें चार नाम हो गए हैं, समोन, पतरस और साइमन और पतरस, Cephas. सेफस। Yeah. So this new name signaled a new beginning in Peter's life. और ये जो जो प्रभु यीशु मसीह ने नाम रखा उससे उसका जिंदगी का एक नई शुरुआत हुई। We all know that some people in the Bible, they have changed their name because we read in the Old Testament, God changed Abraham to Abraham. और हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे जो लोगों ने अपना नाम को बदल लिया है और उसको हम देखते हैं पुराने नियम में कि अब्राहम ने अपना नाम अब्राहम कर लिया था। Just the same way, God changed Sarai to Sarah and और Jacob to Israel. और उसी तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका नाम जेकब से इसराइल कर दिया था और सीरिया से सारा कर दिया था। But Peter was not given a nickname here, but it was a prophecy. You are and you will be. That is a prophecy. और जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे उसका नाम को पतरस ही रखा है और कोई उसका दूसरा नाम नहीं था, जिसका अर्थ था कि एक ही नाम और एक ही काम। It is just like Lord Jesus Christ is seeing our brother Enosh and telling him, you are Enosh, but now you will be a rock because you have accepted me as your savior. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यीशु मसीह ने जो पतरस का जो नाम रखा था, जैसे मेरा नाम इनोस है तो इनोस का मतलब है चट्टान जो कभी नहीं बदलेगा। Yes, Lord Jesus Christ, God is seeing each and every one of us and saying that you are made out of the dust of the earth, but now you will be a rock for me because you are my child. और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बोलता है कि तुम सभी लोग जो इस दुनिया की मिट्टी से बने हो लेकिन तुम मेरे लिए एक चट्टान हो, क्योंकि मैं तुमको एक चट्टान समझता हूँ। We all know that it takes a much time to produce a rock, solid rock. It needs plenty of heat and pressure to produce a solid rock. It took nearly 3 years of friendship for Jesus Christ to produce Peter.
और हम यहाँ पे देख जानते हैं कि जो एक पत्थर को मजबूत पत्थर बनने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को देखा, उसको 3 साल लग गए, तब पतरस एक चट्टान के रूप में, मजबूत चट्टान के रूप में बना। So Peter, he became into a wonderful pillar. He became into a wonderful foundation stone with all these beautiful jewels. We read that in the Revelations also. और हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि पतरस एक बहुत जाना मजबूत, जो प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए एक मजबूत सी नींव बन गया, और उसको हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य में। But even though this Peter, who was very weak, he had many weaknesses, but he became to be a very effective leader, dynamic leader in the church. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस के अंदर बहुत सारी कमजोरियां थी, लेकिन बावजूद उसको पतरस के पास एक क्षमा करने की जो अहम चीज थी, और वो अपने को चर्च में जो सभा में अपने आप को देखता था। So Bible tells us that many people who are accomplished greater things, impossible things, और because they trusted in the Lord and he used them for his glory. और हम यहाँ पे बाइबल के जरिए देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अद्भुत कार्य किए हैं, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को के नजदीक थे और उन पर विश्वास करते थे, और वो बहुत जाना आगे बढ़ गए। If you take the life of Moses, he was a murderer, but he became to be the greatest leader of Israel. और हम इस बात को बाइबल में देखते हैं कि जो मूसा एक कातिल था, लेकिन वो आगे चल के बहुत अच्छा सभी इसराइलों का लीडर बना, उनका उनका मुखिया बना। We all know the life of Gideon. He was a very weak man. He was hiding for his life. Later on, he became a mighty warrior. और हम गिडियोन के बारे में देखते हैं कि वो बहुत जाना डरपोक था, और वो लोगों के बीच में छुप जाता था अपनी जान के लिए, लेकिन बाद में वो एक बहुत जाना ताकतवर योद्धा बन गया। So, brothers and sisters, as Jesus told Peter, he wants to tell to each and every one of you that you are taken from the dust, but you shall be a living stone. Shall be a rock for me. That is the word he wants to give us. और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पतरस से कहा, और वो हमसे भी यही कहते हैं कि तुम भले ही इस दुनिया की धूल से बने हुए हो, लेकिन तुम मेरे लिए चट्टान की तरह हो, और मैं तुमको चट्टान समझता हूँ, जो तुम कभी बदलोगे नहीं, और मेरे पीछे चलते रहोगे। So when we go into the third new thing, that is third point is the new life. और हम जो तीसरा मुख्य कारण को देखेंगे, और वो तीसरा कारण है नई जिंदगी। So when Peter experienced this wonderful transformation in his life because he accepted Jesus Christ as his savior and he received the eternal life as a gift from God. और हम पतरस के जीवन में के बारे में देखते हैं कि पतरस का जीवन जब बदल गया, तब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, और उस प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को उसके जीवन में एक अनंत काल का जीवन को तोहफे में दिया। So life comes from birth and God's life comes to us through the new birth. और हम जानते हैं कि जो जीवन है वो एक पैदा होने के बाद मिलता है, लेकिन जो परमेश्वर का जो जीवन है, उसको पैदा होने के बाद और उसके बपतिस्मा के बाद हमको नया मिलता है। So, brothers and sisters, we can have this living relationship with the living Christ only when we read his living word. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
जब हम यीशु मसीह का के साथ एक जीवित रिश्ता रखते हैं, वो तब रखते हैं जब हम उसके जीवित जो वचनों को पढ़ते हैं। So, Peter trust Jesus, the living stone, so that this living stone will give him a living hope. और हम यहाँ पे देखते हैं पतरस प्रभु यीशु मसीह के को एक प्रभु यीशु मसीह पतरस को एक चट्टान की तरह देखते हैं, और चट्टान परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे चलता रहे, ऐसा उसका जीवन हो गया था। So that is what we read in 1 Peter 2nd chapter 5th verse. There Peter, he talks about the living stones. We shall और read verse before we close. और हम यहाँ पे देखते हैं पतरस अपना जीवन को पत्थर को रूप में बता रहा है, और वो उसको हम देख सकते हैं पहला पत्रस का 2 अध्याय उसके 5 वचन में। We can read this verse, 1 Peter 2nd chapter 5th verse. और हम इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं पहला पत्रस का 2 अध्याय उसका 5वें वचन को, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा हो। So here Peter is saying, my name does not mean rock, but I am a living stone in the temple of God because I have trusted Jesus Christ. और पतरस यहाँ पे बताता है कि मेरा नाम का अर्थ पत्थर नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि मैं पत्थर बनके जो याजकों के बीच में रहकर परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताऊं। So, brothers and sisters, today evening we have seen 3 new things in the life of Peter. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमने 3 बातों को पतरस के जीवन के बारे में देखा। The first thing is the new beginning. He decided to follow the Lamb of God. और पहली बात ये थी कि एक नया जीवन और जो परमेश्वर के मेमने के पीछे हो लेना। The second thing is he had a new name, Cephas. He was not just like ordinary clay, but he was being transformed into a rock. और दूसरी अहम बात ये थी कि जो उसको नया नाम मिला, जो सिफास, जो एक पत्थर का, एक चट्टान का प्रतीक है। And the third thing, he had a new life. Because he was depending on the living stone, he had a living hope. और तीसरी बात ये थी उसका नया जीवन, जो एक लोगों के बीच में आशा के रूप में बन के आए। So, brothers and sisters, may God help us to be faithful disciples to him so that he might be able to do what he has planned to do for us in our lives. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको सहायता करे कि आप जो क्या करना चाहते हैं वो आप कर सके, और परमेश्वर के पीछे होके और उसमें विश्वास में आगे बढ़ते रहें। May his name be glorified. Amen. और प्रभु का नाम ऊंचा हो। आमीन।